السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 16 جولائی 2020۔ جو سوالات بھی عصر تک آ گئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ دوبارہ سوال ذاتی طور پر بھی کر سکتا ہے۔ ایک سوال جو ہے لمبا چوڑا آیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ لاؤ سب سے پہلے اس کا تفصیلی جواب دیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ جانوروں میں جو یہ عیب ہے تو کیا کیا عیب معتبر ہے۔ سوال چھوٹا سا ہے لیکن جواب اس کا بڑا لمبا ہے، تو میں نے سوچا یہ ایک جگہ کر دیتے ہیں آج۔ دیکھیں، سب سے پہلے سینگ کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کو پیدائشی سینگ نہیں ہے، یا ایک سینگ چھوٹی یا ایک بڑی ہے، یا سینگ ٹوٹی ہے۔ سینگ میں دو چیز ہوتی ہے، ایک اوپر اس کے خول ہوتا ہے اور اندر اصل سینگ ہوتی ہے جس کو بالی کہتے ہیں۔ تو اگر اوپر کا خول ٹوٹا ہوا ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ سینگ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر دوسری بات بتا رہا ہوں، اگر سینگ جو ہے وہ ایسی ٹوٹی ہے کہ جو جڑ سے یعنی خول بھی غائب ہے اور ٹوٹ گئی ہے سینگ اور بالی تک نکل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ ہے۔ اگر ایک جانور اندھا ہے یا ایک آنکھ کا ہے جس کو کانا کہتے ہیں، یا اس کی روشنی 1/3 نہیں ہے، یعنی آنکھ تو ہے دونوں لیکن روشنی 1/3 نہیں ہے، تو پھر ایسی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آنکھ بھینگی ہے، جس کو اینچا تانی کہتے ہیں یوپی میں، اگر آنکھ بھینگی ہے یا ایک آنکھ بڑی یا دوسری آنکھ چھوٹی ہے، ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ کان آئیے، کان کے سلسلے میں اگر کان ہی نہیں ہے، چاہے ایک یا دونوں، یعنی پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کان ہے دونوں، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، تو قربانی جائز ہے۔ اگر کان کٹا ہوا ہے اور کان کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ کان عموماً جتنے ہوتے ہیں جو جانور کے، اگر اس سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو پھر ایسی شکل میں وہ کان مانا جائے گا اور قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ناک آئیے، بعض جانوروں کو ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے تو یہ نچلا حصہ کٹ کے ایک دم لٹکنے لگتا ہے۔ اگر ناک کٹ گئی ہے تو پھر یہ عیب ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن ناک میں سوراخ ہے صرف نکیل ڈالنے کی بنیاد پر، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، قربانی اس کی جائز ہے۔ دانت آئیے، دانت دو طریقے کے ہوتے ہیں، غور سے سنیں۔ ایک دانت جانور کو پیدائشی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دودھ کا دانت کہتے ہیں، اور ایک دانت اس کو عمر کے لحاظ سے نکلتا ہے، یعنی اگر بڑا جانور ہوتا ہے تو 2 سال کے بعد نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں دانتنا، کہ جانور دانت گیا۔ اور اگر چھوٹا جانور ہوتا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، تو ان کو 1 سال میں دانت نکلتے ہیں۔ تو اگر دانت موجود ہیں، 2 سال ہو گیا ہے اور ہونے کے بعد اس کو وہ دانت نہیں نکلا جس کو دانتا کہتے ہیں، تو قربانی جائز ہے، دانت اس کے موجود ہیں۔ جس جانور کے ایک دم دانت نہ ہو، یعنی کوئی دانت ہی نہیں ہے، جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا، کوئی دانت نہیں ہے، اور یا یہ کہ دانت تھے اور سارے کے سارے ٹوٹ گئے ہیں، چاہے عمر کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں یا بیماری کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں، اور سارے دانت جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اتنا ہو گئے ہیں کہ اب وہ چارہ نہیں کھا پاتا ہے دانتوں سے، تو ایسی شکل میں پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کچھ دانت موجود ہے جس سے لیکن وہ چارہ آسانی سے کھا لیتا ہے، تو پھر یہ دانت عیب، ٹوٹنا عیب نہیں مانا جائے گا اور قربانی اس کی جائز ہے۔ پہلے والے میں جو بتایا وہ قربانی ناجائز ہے، یعنی کہ دانت اگر ہے ہی نہیں
दांत बीमारी की वजह से खत्म हो गए हैं, उम्र की वजह से खत्म हो गए हैं, चारा नहीं खा सकता है, किसी किस्म का कोई दांत नहीं है, तो फिर ये ऐबदार जानवर है। इसी तरीके से जबान है। अगर किसी जानवर की जबान 1/3 हिस्सा कटी हुई है तो फिर ऐसी शक्ल में उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और अगर थोड़ी सी कटी है लेकिन चारा वो आसानी से खा सकती है, खासकर बकरी और छोटे जानवर, तो फिर ऐसी शक्ल में उनकी कुर्बानी जायज है। दुम वाले जो जानवर है, बल्कि सारे दुमी वाले जानवर की कुर्बानी होती है। अगर पैदाइशी तौर पर दुम न हो तो फिर ऐसी शक्ल में ये ऐब है और कुर्बानी जायज नहीं है। अगर दुम थी और 1/3 या उससे ज्यादा दुम कट गई तो फिर ऐसी शक्ल में कुर्बानी जायज नहीं है। अगर दुम जितनी होनी चाहिए थी उससे छोटी हुई तो कुर्बानी जायज है, यह ऐब नहीं है। इसी तरीके से थन जिसे कहते हैं, छाती, जहां से दूध आता है जानवर को, तो 2 तरीके के जानवर हैं। बाद जानवर ऐसे हैं जिनको 2 ही थन होता है, बाद जानवर ऐसे हैं जिनको 4 थन होते हैं। अगर 2 थन वाले जानवर जैसे बकरी है या मेंढ है, अगर इसमें से एक थन खराब है, चाहे सूख गया है, दूध नहीं आता है, एकदम जख्मी है, एक थन अगर उसका खराब है तो फिर ऐसी शक्ल में कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी आधा का 1/3 हिस्सा भी अगर खराब हो जाता है तो कुर्बानी जायज नहीं होती। यहाँ पर आधा खराब गया, लिहाजा एक थन के खराब होने की वजह से ये ऐब है और कुर्बानी इसकी जायज नहीं है। और अगर 4 थन वाला जानवर है और उसमें 2 सही हैं और 2 तो गोया फिर भी 50% खराब है, लिहाजा ऐसी शक्ल में इसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। जिस जानवर का थन कटा है, जख्मी है और ऐसा कटा हुआ है और इतना जख्मी है कि बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, दूध निचोड़ना चाहे तो थन में हाथ नहीं लगाने दे रही है, लिहाजा गोया कि ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर 4 थन वाले जानवर का कोई एक थन खराब है तो गोया ये इसकी कुर्बानी जायज है। 4 या 2, यानी अगर 2 वाला है और एक उसका थन छोटा या बड़ा है, या 4 वाला है, 3 बड़ा है, 1 छोटा है, तो फिर ऐसी शक्ल में उससे दूध आता है, थन सिर्फ छोटा है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज है। पांव के बारे में है कि अगर कोई जानवर पैदाइशी तौर पर 4 पैर के बजाय 3 पैर पैदा हुआ है तो फिर ये ऐब है, कुर्बानी जायज नहीं है। अगर एक पैर में उसके लंगड़ापन है, और लंगड़ापन ऐसा है कि जब वो चलता है तो चौथे पैर को, जिसमें लंगड़ापन है, उसको जमीन पर रखता ही नहीं है, चाहे तकलीफ की वजह से नहीं रखता है या ये इतना छोटा है कि वो रख ही नहीं पाता है, तो फिर ये भी ऐब है और कुर्बानी इसकी जायज नहीं है। पांव में लंगड़ापन है और इस कदर जख्मी है, पांव तो बराबर है चारों, लेकिन इतना जख्मी है कि वो रख नहीं पा रहा है पैर को, 3 ही पैर के सहारे चल रहा है, तो फिर ऐसी शक्ल में भी कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, अगर एक पैर उसका लंगड़ा है लेकिन जब चलता है तो उसके ऊपर जोर दे करके चलता है, यानी उस पैर को भी जमीन पर रखता है, तो फिर यह ऐब नहीं माना जाएगा और इतने लंगड़े जानवर की कुर्बानी जायज है। पूरे जिस्म के लिहाज से अगर देखा जाए कि अगर कोई बकरी है, वो बांझ है, बच्चा जिसको अलग अलग इलाके में अलग अलग जबान इस्तेमाल की जाती है, तो अगर वो बांझ है बकरी तो फिर ऐसी शक्ल में उसकी कुर्बानी जायज है, वो ऐब नहीं है। या जानवर खसी है, अंडू नहीं है, खसी है, बद्दी जिसे कहते हैं, तो भी उसकी कुर्बानी जो है वो जायज है। अगर जानवर में खारिश है और खारिश इस कदर है कि हल्की सी खारिश है तो कुर्बानी जायज है, लेकिन अगर इतनी खारिश है कि खारिश की बुनियाद पर वो कमजोर हो गया है और बमुश्किल तमाम चलता है और देखने में भी जो है जानवर खराब लगता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मर्द आदमियों में होते हैं खुनसा, जिसे हिजड़ा कहते हैं, ऐसे ही जानवर में भी होते हैं, ना मुदक्कर होते हैं, ना मुअन्नस, ना मेल ना फीमेल, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जो है वो जायज नहीं है। तो आखिरी बात जानवर के बारे में, इसी तरीके से अगर जानवर इतना कमजोर है कि उसकी
नलियों में गूदा नहीं है। कैसे मालूम होगा नलियों में गूदा नहीं हो? तो बाद में मालूम होगा जब दबा होगा। नलियों में गूदा जब नहीं होगा तो वो चल नहीं सकता है, ढकेल ढकेल के चलाया जा रहा है। अगर कोई जानवर ढकेल ढकेल के चलाया जाता है तो फिर ऐसी शक्ल में जो है वो जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह एक बात और कह करके ये आज़ा के बारे में जो बात है कंप्लीट हो गई है, वो ये है कि अगर कोई ऐप पैदा हुआ ऐसे वक्त में जानवर सही सालिम था, लेकिन हुआ ये कि जब आप जानवर को ज़बह करने के लिए लिटाया या उसको पटका, ऐसी शक्ल में उसके अंदर सींग टूट गई या कोई ऐप पैदा हो गया तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ये तो जानवर के ऐप के बारे में बातें थी। कुर्बानी की, चूंकि मैंने कहा था कि आज कुर्बानी पर सवाल भेजे, ज्यादातर सवाल कुर्बानी पर आए हुए हैं। पूछा गया है कि कुर्बानी फर्ज है मगर हमारे पास नकद पैसा नहीं है, तो ऐसी शक्ल में क्या किया जाए। देखें, जिस वजह से कुर्बानी फर्ज है, आप खुद कह रहे हैं हमारे तो कुर्बानी फर्ज है, उस चीज को बेच करके कुर्बानी की जाए। यदि सोना है, चांदी है, सामान है, उस सामान को बेचकर कुर्बानी की जाए, अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हम कुर्बानी हमारे पर वाजिब है। पूछा गया है कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी का क्या हुक्म है। ये मसला थोड़ा सा इख्तलाफी है। कुछ लोगों के नजदीक मरहूम की तरफ से कुर्बानी जायज नहीं है, कुछ स्कॉलर्स की तरफ से कुर्बानी जायज है। जो लोग कुर्बानी जायज कहते हैं उनके नजदीक दलील हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि अली रजी अल्लाह, तिरमिज़ी में भी गालिबन रवायत है ये, और भी किस्सा में रवायत है कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि मेरे लिए कुर्बानी किया करो। लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हर साल कुर्बानी करते थे। ये हदीस मौजूद है। इस पर कयास करते हुए इमाम आज़म अलैहिर्रहमा का कहना है कि कोई भी शख्स अगर इंतकाल कर गया है तो उसकी तरफ से कुर्बानी हो सकती है। लिहाजा मसले के इख्तिलाफ की वजह ये है। लेकिन और सहाबा का अमल रहा हो, इस पर कोई हमारे पास मुस्तनद हदीस मौजूद नहीं है। मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरी राय इसमें यह है कि जो लोग मरहूम की तरफ से कुर्बानी करते हैं वो ये नियत करें कि कुर्बानी तो मेरे नाम पर हो, अल्लाह ताला ये नफली कुर्बानी जो मैं कर रहा हूँ इसका जो सवाब है वो मेरे अब्बा को पहुंचे, मेरी अम्मा को पहुंचे। ये नियत कर लें तो सबसे अच्छी चीज है ये। फिर इसमें इख्तिलाफात बहुत हद तक क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी नफली चीज की का जो है वो नफली चीज का सवाब मुर्दों या जिंदों किसी को भी पहुंचाया जा सकता है। पूछा गया है जब कुर्बानी की नियत से बकरा पाला था, हालात ऐसे हुए कि बकरे को बेच दिया मजबूरी दर्जे में, जबकि कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, तो क्या ऐसे वक्त में हम बकरे को बेच सकते हैं? जिस चीज को आपने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, वाजिब नहीं कि आपने वाजिब कर लिया कि ये जानवर मैं कुर्बान करूंगा, लिहाजा आप उसको बेच नहीं सकते हैं। पूछा गया है कि कुर्बानी अकीके के साथ मुमकिन है, अगर मुमकिन है तो दलील क्या है? सही बात तो ये है कि दलील हमारे पास मौजूद नहीं है कि कुर्बानी और अकीका एक साथ हुआ हो, ये ऐसी कोई हमारे पास दलील नहीं है। ये एक क़यासी मसला है। वल्लाहु आलम कहाँ तक ये बात सही है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक ये जायज़ है। दलील मुझे मालूम नहीं है। इसके पहले भी मैं कई साल से बता चुका हूँ कि दलील मुझे मालूम नहीं है। अब रही क्या कहते हैं मसला ये है कि बड़े जानवर की में कुर्बानी के साथ अकीका हो सकता है, चाहे कुर्बानी का जमाना हो या न हो। आम दिनों में भी बड़े जानवर, मिसाल के तौर पर एक गाय में, एक ऊंट में, एक भैंस में 7 लड़कियों का अकीका एक साथ कर दिया गया तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर आप दलील मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास इसके लिए कोई मुस्तनद दलील हदीस से मौजूद नहीं है। फुक़हा की किताबों में लिखा हुआ है, लिहाजा उसको हम मानते हैं, उसी बुनियाद पर फतवा दिया जाता है। पूछा गया है कि अगर कोई आदमी 7 दिन तक अकीका नहीं किया है और वो बकरीद में शामिल होना चाहता है, इसी कुर्बानी में अकीका करना चाहता है, तो क्या करे? वो 7 दिन अगर गुजर गए तो अब आपके ऊपर जब चाहें आप अकीका कर सकते हैं। अब अकीके का कोई टाइम मुतय्यन नहीं रहा, क्योंकि अकीका जो था, असल सुन्नत तरीका जो था, सुन्नत जो दिन थे वो 7 थे, वो तो खत्म हो गए। अब आपका जब दिल चाहे आप अकीका कर सकते हैं। कुछ हमारे उलमा ने ये कहा कि अगर ऐसा किया जाए कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, मतलब बुध को बच्चा पैदा हुआ है,
تو اس کی زندگی کا ہر منگل آنے والا، پوری زندگی ہر جب منگل آئے گا تو اس کے زندگی کا 7واں دن ہوگا، 7واں دن ہوگا، 7واں دن ہوگا. اگر آپ 7 سے ڈیوائڈ کرتے جائیں گے تو منگل کا دن آتا جائے گا. تو بعض لوگوں نے کہا اس بات کا اہتمام کر لے، اور یہ بھی قیاسی بات ہے، کوئی قرآن حدیث سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. لہذا جب وقت ختم ہو گیا تو بندے کو اختیار ہے جب چاہے وہ عقیقہ کر لے. پوچھا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم قربانی کے لیے ہم نے جانور پالا اور یا ہم نے کہیں قربانی کرائی، جیسے کہ آج کل رواج بن گیا ہے قربانی کرانے کا، اور کسی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکی، یعنی ہم نے جانور پالا اور نہیں کر سکے، یا ہم نے جہاں قربانی کے لیے دیا وہاں قربانی نہیں ہو سکی اور انہوں نے بعد میں فون کر دیا کہ بھائی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی قربانی نہیں کر سکے، اور 3 دن گزر گئے قربانی کے، تو دیکھو پھر ایسی شکل میں اس میں چونکہ آپ کی نیت قربانی کرنے کی تھی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو قربانی کا ثواب دے دے گا. اب یہ جو پیسہ بچا ہوا ہے یہ پیسہ پھر صدقہ کرنا پڑے گا. آپ اس پیسے کو یہ نہیں کہہ سکتے اس مدرسے والے سے کہ میرا پیسہ واپس کرو اور مجھے چاہیے. ہاں دادا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دے دو، میں آپ خود جہاں چاہوں گا وہاں صدقہ کروں گا، یہ تو ممکن ہے، لیکن اس پیسے کو آپ کو صدقہ کرنا ہی کرنا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر قربانی کے لیے جانور رکھا، گرچہ قربانی فرض نہیں تھی، تو کیا جانور بیچ کر اپنی ضرورت میں استعمال، ابھی بتایا میں نے کہ اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اگر پوچھا ہے کہ اگر جانور خریدا گیا اور اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا جبکہ قربانی واجب نہیں تھی، اگر قربانی واجب نہیں تھی تو اس کو بات پوری سن لیں. اگر قربانی واجب نہیں ہے اور جانور غائب ہو گیا، جانور چوری ہو گیا، جانور مر گیا، یہ تینوں شکل میں جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر جانور میں عیب پیدا ہو گیا تو اسی عیب کی حالت میں وہ آدمی قربانی کر دے جس نے جانور خریدا ہے، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اگر جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، غور سے سن لیں اس مسئلے کو، اگر قربانی واجب نہیں تھی، جانور غائب ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیت کر چکے ہیں، دوسرا جانور قربان کر دیتے ہیں. اس نے دوسرا جانور قربانی کر دیا، حالانکہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا قربانی کرنا، دوسرا جانور اس نے لا کر کے قربانی کر دیا. اب جب قربانی کے دن ختم ہو گئے تو وہ جانور بھی واپس آ گیا یا مل گیا جو غائب ہوا تھا، تو اس جانور کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کو بھی صدقہ کرنا پڑے گا. اس کا الٹا کر لیں، اگر کسی شخص کے اوپر قربانی واجب تھی، وہ جانور غائب ہو گیا تو اس کو قربانی دوسری کرنی ہے، وہ جانور مر گیا تو بھی اس کو قربانی دوسری کرنی ہے، وہ جانور میں عیب دار ہو گیا تو بے عیب کی قربانی پھر اس کو کرنی ہے. اور اگر وہ چیز واپس آ گئی، جانور مطلب غائب جو ہوا تھا وہ جانور اس کو مل گیا، یا بیمار تھا اور صحت مند ہو گیا، تو پھر جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جانور کو صدقہ کرے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ جس کے اوپر واجب نہیں تھی اس نے اس پارٹیکولر جانور کو، اس خاص جانور کے اوپر نیت کر لی تھی، لہذا وہ واجب ہو گیا تھا جانور. اب وہ واپس بھی آیا، صحت مند ہو گیا، تو بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے. اور امیر آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی، لہذا وہ ایک قربانی کر دیا ہے، اگر دوسرا جانور صحت مند ہو گیا تو وہ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. چوری تھا، غائب ہو گیا، واپس آ گیا ہے، تو بھی اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ کیا ایک جگہ رہنے والا دوسری جگہ قربانی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، کرتے ہی لوگ ہیں. پوچھا گیا اگر قربانی کا جانور غائب ہو گیا یا مریض تھا بعد میں صحت مند ہوا تو کیا حکم ہے؟ ابھی میں نے اس کا مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر غائب تھا اور مل گیا اور آپ کے اوپر قربانی واجب تھی اور آپ نے دوسری قربانی کر دی ہے تو یہ جانور آپ اپنے استعمال میں کر سکتے ہیں. قربانی واجب نہیں تھی اور آپ نے بھلے ہی ایک دوسرا جانور قربان بھی کر دیا ہو، یہ جانور اگر ملا ہے تو پھر ایسی شکل میں آپ کو قربانی اس جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا. پوچھا گیا مولانا صاحب بعض جانور میں عیب کی بات تو سبھی لوگ کہتے ہیں، اگر جانور میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے، مثال کے طور پر 4 تھن کے بجائے 5 تھن ہو جائے، ایک کان ہے
छोटा सा एक और कान हो जाए। अगर वो ऐब नहीं है तो फिर ऐसी शक्ल में वो जो जाती है वो काबिले मतलब माफी है, उसको उसकी वजह से जानवर को ऐबदार नहीं बन रहा है तो उसकी कुर्बानी जायज है। पूछा गया मौलाना साहब मैंने एक जानवर लिया देखा नहीं और अब उसके वो देखते हैं कि उसके पेट के ऊपर जो है ना वो एक छोटा सा गोला निकला हुआ है। देखें ये जो गोला निकला हुआ है ये अंदर है, ऊपर से सिर्फ उसका साइज नजर आ रहा है, लिहाजा ये कोई ऐब नहीं है, जानवर की कुर्बानी की जा सकती है। फिर उन्होंने पूछा है कि अगर खुदा ना खास्ता अभी तो 15 दिन बाकी है कुर्बानी में, अगर जानवर वो फोड़े की शक्ल अख्तियार कर गया और उसके अंदर पीप निकलने लगी और मक्खियां बैठने लगी तो क्या मैं उस जानवर को कुर्बान कर सकता हूं? अब ये ऐब हो गया, पीप निकलना, खून निकलना और मक्खियों का बैठना ये ऐब हो गया है, लिहाजा आप उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। पूछा गया है कि लॉकडाउन की वजह से मैंने अपना जानवर पाला था, अब मैं गांव शहर में कुर्बानी करना मुश्किल है, लिहाजा मैंने ये तय किया कि जानवर को बेच दिया। अब जानवर मैंने जो बेचा वो तकरीबन 25,000 रुपए के बेचा एक जानवर। मैं अपने गांव गया तो वहां पर बहुत अच्छा जानवर हमको 20,000 रुपए में मिल गया। तो ये 5,000 रुपए अब हम क्या करें, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं? देखिए अगर ये जो जानवर आपने तय कर लिया था उसकी कीमत जो 5,000 है वो आपको हर हाल में सदका करनी पड़ेगी, वो 5,000 रुपए आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। पूछा गया है कैसे हालात में मौलाना साहब नफली कुर्बानी करना अफजल है या खिदमत खल्क या गरीबों की मदद कर देना अफजल है? देखें जो हदीस में सराहतन जिक्र है कि इन दिनों सदका भी सवाब का काम है, नफली भी सवाब का काम है, लेकिन हबीब मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इन दिनों में इहराक़ दम से अफजल कोई काम नहीं, यानी खून बहाना कुर्बानी के तौर पर इससे अफजल कोई काम नहीं है। तो सदका करके सवाब है, लेकिन अगर कुर्बानी के मुआवजे में लेकर के आएंगे तो मैं समझता हूं ये मशवरा नहीं दिया जा सकता कि आप कुर्बानी के बजाय आप सदका कर दें तो वो ज्यादा अफजल है। हाँ दोनों काम करते रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन कुर्बानी स्टॉप करना है, गरचे नफली है वो, और ताकि वो पैसा हम गरीबों को दे दें। ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा गोश्त जब हम जो कुर्बानी करेंगे हम पूरा गोश्त गरीबों में तकसीम कर दें, वो बात वही हो गई। आप इस अंदाज में दोनों तरीके से सवाब हासिल कर सकते हैं, कुर्बानी का सवाब भी मिल जाएगा और सारा का सारा गोश्त क्या कर दें उन गरीबों में तकसीम कर दें जिनके हलक में साल साल भर गोश्त नहीं पड़ता, जिनके हलक में आप उनको दे दें। पूछा गया है कि क्या नाबालिग शख्स कुर्बानी कर सकता है? देखें अगर कोई आदमी अकल वाला है और उसे कुर्बानी करने का सलीका है, अगर कि उसकी उम्र शरई लिहाज से बालिग नहीं है तो वो कुर्बानी कर सकता है। पूछा गया है मशीन के जरिए जो कुर्बानी होती है उसका क्या हुक्म है? अब तक का जो फतवा है वो यही है कि मशीन के जरिए जो कुर्बानी होती है और एक टेप रिकॉर्ड वहां पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पड़ता है, ये ज़बीहा जो है वो जायज नहीं होता है। यहां तक कुर्बानी के सिलसिले में बात थी। आम सवालात जो आए हैं अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं आपको। पूछा गया है मौलाना साहब एक साहब का इंतकाल हुआ है और वो 12 लाख रुपए छोड़ करके मरे हैं, उनकी एक बीवी है, 3 लड़के हैं और एक लड़की है, ये विरासत कैसे तकसीम होगी? देखें जब लड़का मौजूद होता है तो सारा मसला हल हो जाता है, भाई बहन सब महरूम हो जाते हैं। अगर वाइफ है, एक वाइफ है तो वाइफ को 1/8 मिलता है यानी 12.5%, तो 12 लाख का 12.5% 1.5 लाख रुपए हो गए। लड़का और लड़की अब 1.5 लाख निकालने के बाद जो बचा उसको 7 से डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि 3 लड़के हैं तो 3 लड़के का डबल हो गया, तो मतलब 6 हिस्सा हो गया और एक लड़की 7, तो डिवाइड कर देंगे तो 1.5 लाख रुपए लड़की को भी मिलेगा, तो 1.5 लाख रुपए बीवी को मिलेगा और 1.5 लाख रुपए लड़की को मिलेगा। लड़की के मिलने के बाद क्योंकि लड़के को डबल मिलता है लिहाजा 3 लाख रुपए लड़कों को मिल जाएगा। इस तरह 12 लाख रुपए तकसीम हो गए, इस तरीके से तकसीम होना है।
पूछा गया मौलाना साहब, एक खबर आई है और सही है कि तुर्की में जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने एक म्यूजियम को, जो बहुत पुराना म्यूजियम था, उसको उन्होंने मस्जिद में तब्दील किया है। तो आपकी क्या राय है, उनका ये करना अच्छा है या नहीं? देखो, मुझे ज्यादा मालूमात इस सिलसिले में नहीं है। मैं एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ। वो जो म्यूजियम था, उसकी असली हैसियत क्या थी? अगर पहले वो मस्जिद था और वहां के सदर ने उसको मस्जिद बना दिया तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कमाल पाशा अतातुर्क ने, क्योंकि उसको इस्लाम से दुश्मनी थी, लिहाजा उसने उसको म्यूजियम बना दिया था। और अगर वो मस्जिद नहीं थी, चर्च था, जैसा कि लोग कह रहे हैं, अगर वो चर्च था तो उस चर्च को मस्जिद नहीं बनाना चाहिए था, चर्च को अपनी असली पोजीशन चर्च में वापस कर देना चाहिए था। बहरहाल खुलाफे कलाम ये है कि जो उसकी असली हालत थी, उस असली हालत को वापस कर देना चाहिए था, तो ज्यादा अच्छी बात होती। ऐसे क्या हुआ कि गोया कि, अगर मुझे नहीं मालूम है, अगर वो चर्च था बुनियादी तौर पर म्यूजियम बनाया गया तो कमाल अतातुर्क ने गलती की, और अगर वो मस्जिद थी और उसको म्यूजियम बनाया गया तो भी गलती की। अब उस गलती को अगर का कफारा किया जा रहा है तो जो उसकी असली हालत थी वो कर देना चाहिए था। अगर वो चर्च था तो चर्च कर देना था, और मस्जिद थी तो मस्जिद करना चाहिए था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया मौलाना, अगर नमाज में कोई आदमी कंफ्यूज हो जाए कि सूरह फातिहा उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, लिहाजा उसने सूरह फातिहा दोबारा पढ़ दी, अब तो कंफ्यूज हो गया ना, उसको तो मालूम नहीं। सवाल में इस्तेमाल किया गया है कि रिपीट किया है, रिपीट तो इस वक्त होगी जब दोबारा पढ़े, उसको तो मालूम ही नहीं हो रहा है, लिहाजा ऐसी शक्ल में उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। एहतियाती तौर पर अगर वो सज्जा सहू कर ले तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पूछा गया मौलाना, बहुत से लोग वज़ाइफ भेजते हैं और रोजाना सैकड़ों वजीफे भेजे जाते हैं, और उनका नाम लेकर के बड़ों का, कि बड़ों का तजुर्बा है या कादिरीन का तजुर्बा है, ये उसको सनद दी जाती है। लेकिन जो भी भेजने वाला है, अगर वो ये जुमला कहता है कि बड़ों का तजुर्बा है या कादिरीन की राय है, तो फिर ये एक गोया इलाज के तौर पर करने में कोई हरज नहीं है। सवाब के तौर पर इसको नहीं किया जा सकता है। सवाब तो उसी काम में होता है जो अल्लाह और उसके रसूल बताते हैं, बकिया किसी काम में सवाब नहीं होता है। कोई काम देखने में अच्छा हो, ज्यादातर लोग यही बहस करते हैं कि भाई ये वजीफा है, अच्छा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अच्छा होना किसी के सवाब के होने की दलील नहीं है, बल्कि अल्लाह रसूल का कहना, उनकी बात मानना सवाब होता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों को कि अच्छा अगर मौलाना साहब ये काम हम कर लें, मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है अगर नमाज अजान से पहले हमने दरूद पढ़ लिया तो इसमें क्या गलती हो गई? लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि नेकी अपनी तरफ से फिक्स नहीं की जा सकती है। लिहाजा ये जो बात कही जा रही है, बड़ों ने, अकाबिर ने ये बात कही, आप उसको सवाब समझ करके नहीं करें, इलाज के तौर पर करें, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से पूछा गया है कि नमाज के सलाम के बाद इमाम का इत्तिबा किस हद तक है? देखिए, जब आदमी ये नहीं पूछना चाह रहे हैं कि नमाज जब सलाम फेर दिया तो हम उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक इमाम साहब दुआ ना कर लें, ये गलत है, ये कुरान हदीस से साबित नहीं है। इमाम ने जब सलाम फेर दिया और आपने सलाम फेर लिया, आपका रिश्ता उससे मुनक़ते हो गया। अब बैठे रहना उस वक्त तक जब तक कि इमाम साहब दुआए जहरी न कर लें, तब तक आप भी बैठे रहें। जब वो दुआ शुरू करें तो आप भी शुरू करें, जब वो खत्म करें तो आप भी खत्म करें। बीच में उनसे पहले जा नहीं सकते, बगैर दुआ के आप पहले नहीं जा सकते। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं सब शरीयत के खिलाफ है, कोई चीज भी कुरान हदीस से साबित नहीं है। हाँ, रही ये बात कि नमाज फर्ज के बाद दुआ कबूल होती है, ठीक है, आप अपने तौर पे दुआ किए, अब उसी वक्त इमाम साहब भी दुआ कर रहे हैं तो ऐसा लग जाएगा कि इज्तिमाई शक्ल में दुआ हो रही है। लेकिन अगर उसको लाजिम किया गया, जब तक इमाम साहब नहीं शुरू करें, जब तक वो खत्म नहीं करें और उठ के जा नहीं सकते हैं, ये जो हमारी कैफियत है, ये कुरान हदीस से साबित नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पूछा गया है
کہ मैयत के बारे में जब कब्र में दफनाते हैं या बच्चा पैदा होता है तो हर इलाके में अलग अलग रस्में हैं। कर्नाटक में अलग अलग रस्में हैं। हम आपको एक बात बता दें, जो सुन्नत तरीका है वो बता देते हैं, उसके अलावा आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब जहालत है, सब आपकी इलाकाई रस्में हैं। और मजे की बात यह है, इसको जांचने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप जब देखें कि हमारे यहाँ ये नहीं होता, यहाँ हो रहा है, यही इस बात की दलील है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि सुन्नत बैन अल-अक़वामी होती है, इंटरनेशनल होती है। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है, काफ़तन लिन्नास है, सबके लिए हैं। वो अगर कोई काम करते हैं तो लंदन वाला भी, लखनऊ वाला भी और हुबली वाला भी, सबको वो बात मालूम रहती है। फजर की सुन्नत अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, लिहाजा कहीं भी आप फजर की सुन्नत पढ़ेंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि भाई साहब ये कौन सी नमाज आप पढ़ रहे हैं। क्यों? वो इंटरनेशनल चीज है। हम जब मरने जीने पे कहीं पहुंचते हैं तो हर इलाके में अलग अलग रस्में होती हैं, लिहाजा आदमी को फौरन समझ लेना चाहिए कि गलती हो रही है। अब मैं किस किस रस्म का, किस किस इलाके की रस्म की बात करूं। अभी 2 दिन मुस्तकिल लोगों का इंतकाल हो रहा है, जनाजे में शिरकत कर रहे हैं, वहां जनाजे में गए तो वो कलमे शहादत पढ़ रहे हैं। हमने कहा हमारे इलाके में नहीं होता है। मतलब क्या है कि ये जो तुम कर रहे हो ये सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरीके से वो पढ़ रहे हैं तो एक साहब खड़े होकर के बाआवाज़ बुलंद, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, वो जो मिट्टी डाल रहे हैं वो बार रिपीट करते जा रहे हैं। ये भी सुन्नत तरीका नहीं है। और इस तरीके से लाजिम कर लिया है कि गोया वो चीज दाखिल है। वहां पहुंचे तो देखा सौंफ लोग लेकर के चुटकी में लोगों के हाथों में दे रहे हैं, वो उसको मल रहे हैं, अल्लाह मालूम उसमें कुछ पढ़ रहे हैं या फूंक रहे हैं या थूक रहे हैं, क्या कर रहे हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। और वो सारे लोग एक बड़े बर्तन में सौंफ को डालते हैं, फिर उस सौंफ को कब्र में रख। मैंने तो अपने इलाके में कभी नहीं देखा, मैं समझ गया कि ये भी सुन्नत नहीं है। वैसे भी मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि सुन्नत नहीं है। फिर इस साहब को देखा कि कुछ मिट्टी के ढेले लिए हुए हैं और कुल पढ़े जा रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या है? कहा ये ढेलों पे कुल पढ़ा जाता है और कब्र के चारों तरफ। ये सारी की सारी खुराफात है, सारी की सारी खुराफात है। बच्चा पैदा होता है, अजान देने के टाइम पर औरतों को इतनी रस्में हैं कर्नाटक में जिसका कोई जवाब। सुन्नत तरीका क्या है बच्चे के पैदा होने के बाद वो बता देता हूँ, और मरने वाला भी बता देता हूँ। बकिया जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये आपका अपना बनाया दीन है, बल्कि ये कह लीजिए कि भारतीय एडिशन है दीन का। इस्लाम का भारतीय एडिशन है, ये अरब एडिशन नहीं है। अभी धारवाड़ में गए तो एक साहब जब कब्र पे मतलब मिट्टी डाल दी गई तो एक साहब ने कहा कि इस पे फूल डालना है मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में पैदा हुए वहां फूल पैदा होता है? जब वहां फूल नहीं पैदा होता है तो अल्लाह के रसूल फूल डालने का कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा हम धारवाड़ वाले हैं, यहाँ पे पैदा होता है। यानी फौरन देखिए आदमी को हया शर्म खत्म हो जाती है। हम रसूल अरबी का नाम ले रहे हैं, वो धारवाड़ वालों का नाम ले रहा है। तो मैंने कहा कि धारवाड़ में फूल पैदा होता है, मुझे भी मालूम है। अच्छा ये बताओ कि रसूल अरबी का इस्लाम आप फॉलो करते हैं या धारवाड़ के मुसलमानों का अलग से कोई इस्लाम है? अब वो एकदम खामोश हो गए। हमने कहा भाई एक बात तय कर लीजिए कि धारवाड़ वाले जिसको इस्लाम समझते हैं हम वो करेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। ये दावा नहीं करें कि रसूल अरबी जो इस्लाम लेकर के आए, जिसकी उन्होंने तबलीग की, हम उस इस्लाम के फॉलोवर हैं, उस इस्लाम को मानने वाले हैं। आप नंबर 1 के झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हबीब मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया, लेकिन लोग अब इतना ढीठ हो गए हैं बिदअत करते हुए कि उनको शर्म नहीं आती है कि एक आदमी रसूल का नाम ले रहा है, वो धारवाड़ वाले का नाम ले रहे हैं। तो ये सारी कैफियत है। लिहाजा पैदाइश के वक्त सुन्नत तरीका क्या है? नंबर 1, बच्चा पैदा होने के बाद उसको सफाई करने के बाद सिर्फ उसके दाहिने कान में अजान दी जाए और बाएं कान में बाद रवायत में है इकामत दी जाए। आनाफ के नजदीक इकामत भी है और अजान भी है। उसके बाद दूसरा काम, कोई बुजुर्ग आदमी तहनीक कर दे। तहनीक किसे कहते हैं?
कोई चीज मीठी, खासकर खजूर को अपने मुंह में चबाए और थोड़ा सा उसका लुआब बच्चे के जबान के ऊपर लगा दे, ये दूसरा काम तहनीक है। ये नहीं करते हैं क्योंकि उनके अब्बा को भी नहीं मालूम है कि सुन्नत तरीका क्या है। वो तो औरत में जो उन्होंने पढ़ा है, और एक जो किताब है पब्लिश नहीं हुई, सारी औरतें उसकी जो है मुजिद हैं, उन्होंने बना रखा है। दूसरा ये कि तहनीक की जाए। तीसरा काम क्या है, 7वें दिन उसका नाम रख दिया जाए, उसका अकीका कर दिया जाए, और हो सके तो जाफरान जो है वो सर पे पानी वगैरह या दूध वगैरह में हल्का सा जाफरानी कलर करके उसके सर पे मल दिया जाए। बाद रवायत में इसका भी जिक्र है। और उसके बाद बच्चे का नाम रख दिया जाए, बच्चे का अकीका कर दिया जाए। अब अकीका कर लेने के बाद, बच्चे का नाम रख देने के बाद, आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब का सब खुराफात है, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से मुर्दे के बारे में बता देता हूं। जब एक आदमी का इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद उसको सुन्नत के मुताबिक लिटा दिया जाए, यानी उत्तर दक्षिण, उत्तर की तरफ सर कर दिया जाए और दक्षिण की तरफ नहीं, दक्षिण की तरफ जो है वो सर कर दिया जाए और उत्तर की तरफ जो है वो पैर कर दिया जाए। उसके बाद किबला रुख उसको कर दिया जाए। जब नहलाने का टाइम हो, लोग 2-2 घंटा नहलाते हैं। मैं सोचता हूँ जब ये जिंदगी में कभी 10 मिनट से ज्यादा नहीं नहलाया, आज इसको 2-2 घंटा नहलाया जा रहा है। मालूम नहीं क्या नहलाते हैं, कैसे नहलाते हैं, इतना टाइम किस चीज में लगता है, मेरी समझ में नहीं आता। शरई लिहाज से क्या नहलाया जाता है समझ भाई। जो नहलाने का तरीका है कि उसको सबसे पहले इस्तिंजा करा दिया जाए, उसके बाद जो है उसकी गलादत को पेट दबा करके निकाल दिया जाए, और तीसरे नंबर पर अगर गलादत कुछ निकली है तो उसको साफ कर दिया जाए। साफ करने के बाद उसको नहला दिया जाए, 3 मरतबा पानी डाल दिया जाए, पानी डाल करके उसको नहला दिया जाए। साबुन मिले तो साबुन से रगड़ करके नहला दिया जाए, अच्छी बात है। बैर का पत्ता, बाद लोग कहते हैं बैर का पत्ता डाल दिया जाए, सुन्नत है बैर का पत्ता। बैर का पत्ता डालने की वजह क्या है, जो मैल को काटता है अगर गर्म पानी होता है तो। अगर आपने साबुन लगा दिया है तो उसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन सुन्नत है तो लिहाजा आप डाल दें। और उसके बाद 3 कफन दे दी जाए मर्द है, और 5 कफन दे दी जाए तो अगर औरत है। और उसके बाद यहाँ से कब्रिस्तान लेके जाया जाए। कोशिश की जाए कि कब्रिस्तान जाते वक्त मुर्दे के आगे न चला जाए, मुर्दे से पहले ना बैठा जाए कब्रिस्तान में, और उसको जब दफन किया जाए उसकी कब्र में, तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा बाद लोगों ने काफूर लिखा है, काफूर डाल दिया जाए। अपने अपने इलाके में बाद लोग क्योड़ा डालते हैं, बाद इतर की बोतल डालते हैं। आज इतना प्यार और मोहब्बत, वैसे तो कभी अब्बा को ला करके उन्होंने इतर की बोतल नहीं दिया था, और इतर की बोतल लुढ़काई जा रही है। बहरहाल खुशबू कोई भी डाल दी जाए। अब उसके बाद सौंफ डालते हैं, फला करते हैं, अल्लाह मालूम क्या क्या करते हैं, जिसका जो दिल चाहता है करता है। क्योंकि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फॉलो करना है तो पूछना है ही नहीं ऐसे लोगों को। और ऐसी जगह पर वो आदमी एक्टिव होता है उस कब्रिस्तान में जिसको दीन का आता पता ही नहीं होता है। आलिम बैठा है, अभी एक जगह यही हुबली में एक साहब का इंतकाल हुआ, एक आलिम खड़ा है नमाज पढ़ाने के लिए, और एक दूसरा आदमी जो आमी आदमी है यानी अवाम है, वो उठ करके खड़ा हो करके नियत बता रहा है। उसको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि बगल में एक आलिम खड़ा है, अगर बताना होगा तो बता देगा। लेकिन ऐसे मौके पर जोहला जो है ना, वो अपना क्रेडिट बनाना चाहते हैं, और अब वो प्रोफेशनल हो चुके हैं, यानी जाहिल प्रोफेशनल हैं जो मुर्दों को दफनाने वाले हैं। अच्छा, उसकी वजह ये भी है कि उलमा चूंकि दूर दूर रहते हैं, लिहाजा प्लेटफॉर्म खाली मिला, लिहाजा वो उसकी जगह पर आ गए। बहरहाल ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि पैदाइश से लेकर के और मौत तक सुन्नत तरीका जाने और अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। पूछा गया है मौलाना साहब, एक हदीस एक साहब ने भेजी है, अना अरब बिला आइनिन, ये हदीस किस किताब में है? इसका तर्जुमा समझ लीजिए। कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजुबिल्लाह फरमाया कि मैं अरब हूं जिसमें ऐन नहीं है। अगर ऐन रे बे में ऐन निकाल दें तो बता रब, यानी मैं रब हूं। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बोले मैं अल्लाह का बंदा हूं, और फिर ये हदीस गढ़ी हुई हदीस है,
لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری، کہ وہ آدمی جو ہم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو تقریریں کرتے ہیں، آپ تقریر کرتے ہیں، آپ کی تحقیق ہونی چاہیے کہ میں جو حدیث کہہ رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ہماری تحقیق ہونا چاہیے۔ نہیں ہم نے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے، چھوٹوں سے سنا ہے، ایک دم غلط طریقہ ہے۔ آپ پہ کس نے کہا ہے کہ آپ سننے کے بعد تقریر کریں؟ آپ نے سنا ہے، آپ اپنے ذات پر عمل کیجئے۔ آپ تقریر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ تبلیغ کرنے والے کون ہوتے ہیں جب تک آپ کی تحقیق نہیں ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، ہم کو تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ موضوع حدیث ہے۔ پوچھا گیا ہے میں سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں کل ایک سفر میں گیا تو وہاں پر ایک اہل حدیث مسجد تھی تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ تو یہ بتائیے کہ ہم سنی اہل سنت والجماعت ہیں، بریلوی مسلک سے ہمارا تعلق ہے، ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی ایک نماز تمہاری ہوئی ہے، بقیہ کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ جس کو تم اہل حدیث کے بارے میں، یہ تو اہل حدیث اگر سوال کرتا تو بات سمجھ میں آتی کہ میں نے ایک ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو شرک کرتا ہے، جو رسول کو حاضر و ناظر جانتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح علم غیب مانتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے ہماری نماز ہوئی نہیں ہوئی، وہ اگر پوچھتا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تم سوال کر رہے ہو، یہ تو سوال ان کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں اہل حدیث جیسے بھی ہوں، جس سے بھی آپ کا سابقہ پڑا ہو، ہم تو ان اہل حدیثوں کو جانتے ہیں کہ جن کی زندگی میں دو چیز قطعی نہیں ہوتی۔ میری بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی لیکن میرا اپنا تجربہ ہے۔ میرا جن حدیثوں سے، اہل حدیثوں سے تعلق ہے اور جن علماء کو، بڑے بڑے علماء کو میں جانتا ہوں، ان کی زندگی میں دو چیز نہیں ہوتی ہے، اور پوچھنے والا انہی دو چیزوں کا وہ حقیقت میں ماننے والا ہے۔ ایک پہلی چیز نہیں ہوتی کہ اہل حدیث شرک نہیں کرتا، نوٹ کر لیں اس بات کو، اور اہل حدیث بدعت نہیں کرتا ہے۔ گاؤں میں کہیں کوئی ہو جائے، لیکن جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو شرک سے اور بدعت سے بچائیں۔ یہ شرک اور بدعت سے بچنا خود بہت بڑی چیز ہے۔ سوال الٹا ہو رہا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہاری یہی ایک نماز تو قبول ہوگی جس کو تم پوچھ رہے ہو کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا نہیں لگے گا میری بات بہت سے لوگوں کو، لیکن جو حق ہے وہ بولنا پڑتا ہے۔ پوچھا کہ معاذ اللہ اگر کسی مسئلے میں دو حدیث ہے تو کس پر عمل کیا جائے؟ دیکھیں اگر وہ حدیث حرام اور فرائض کے بارے میں ہے اور دو حدیثیں خدا نخواستہ ٹکرا رہی ہیں تو ہر حال میں کسی ایک حدیث پر عمل ہوگا، دوسری پر نہیں ہوگا۔ اب اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا بہت کم ہے، 1-8% ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسکالر، کوئی ایک بڑا امام مجتہد جو ہے وہ کسی ایک حدیث کو سمجھ کر کے فتویٰ دے دے اور دوسری حدیث کو سمجھ کر کے فتویٰ دے دے۔ تو فرائض اور حرام میں تو 2-4 کی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ جو فضائل میں بات ہوتی ہے، دو حدیثیں آپس میں، میری سمجھ سے اس میں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ برداشت کرنے کی صلاحیت۔ ہم تو ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے بغل میں ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں اور برابر اشہد ان لا الہ الا اللہ تب تحیات میں انگلی ہلاتے رہتے ہیں، مجھے بہت اریٹیٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اریٹیٹ آپ کو کیوں ہوتا ہے؟ یعنی الجھن ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو آخر اریٹیٹ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کسی حدیث میں سے ثابت ہے تو آپ کا اریٹیشن بند ہو جائے گا۔ اب وہ ہم نے کہا اگر آپ کو رسول سے محبت ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی بعض حدیث سے ثابت ہے، لہذا آپ کو اریٹیٹ ہونے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ کے اندر ٹینشن ہے؟ اگر رسول سے محبت ہے تو سر تسلیم خم کر دیجئے۔ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی حدیث میں، ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو اریٹیشن ہے کہ یہاں انگلی نہیں ہلاتا ہے، ان کا بھی غلط ہے اور تمہارا جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ جب دونوں حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور فضائل کی بات ہے، لہذا ایک دوسرے کو نہ کچھ تو کیچڑ اچھالنا چاہیے، نہ غلط سمجھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور نہ ایسی چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں، ایسی چیز کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے
جو जब इस किस्म के फजाइल में 2 हदीसें आ जाएं। पूछा गया है कि मौलाना साहब सलाम करने के लिए बाद लोग हाथ उठाते हैं और थोड़ा से झुकते हैं, इस्लामी तरीका क्या है? देखें, सही बात यह है, अगर आमने सामने से सलाम हो रहा है तो न हाथ उठाना सुन्नत है और न झुकना सुन्नत है। झुकना तो कभी भी सुन्नत नहीं है। ये तो फर्शी सलाम, ये सब नवाबों की देन है। हिंदुस्तान में हैदराबाद के लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, ये सब नवाबों की वजह से हमारी तहजीब इस किस्म की हो गई, वरना रसूल अरबी की तहजीब झुक कर सलाम करना नहीं है। और अगर दूर से कोई सलाम कर रहा है, इशारा ऐसे शक्ल में अगर हाथ से इशारा कर दे तो जायज है, वरना सुन्नत तरीका ये है कि आदमी सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे, उसके लिए न हाथ उठाना जरूरी है और झुकना तो कतई नहीं चाहिए। पूछा गया, मौलाना साहब मैंने 4 रकात की नमाज इमाम साहब ने पढ़ाई और इत्तेफाक से 5 रकात उन्होंने पढ़ा दिया। जब 5 रकात पढ़ा करके सलाम फेर करके चले गए तो लोग कहने लगे कि इमाम साहब ने आज 5 रकात पढ़ाई है, अब इसमें क्या हुक्म है? देखें, अगर चौथी रकात में वो बैठे थे और फिर खड़े हो गए और 5वीं पढ़ाई उन्होंने, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो चौथी रकात में अगर उन्होंने तशहुद कर लिया और 5 पढ़ाई है तो नमाज हो गई। और अगर 5 रकात पढ़ाई और चौथी रकात में उन्हें तशहुद नहीं किया, पहले में क्या था, तशहुद किया और 5वीं पढ़ाई, तो गोया नमाज हो गई। और अगर चौथी रकात में उन्होंने तशहुद नहीं किया, क्योंकि चौथी रकात का तशहुद फर्ज है, लिहाजा वो नमाज नहीं होगी, नमाज दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 5 रकात पढ़ी और चौथी रकात वाला तशहुद छोड़ दिया, लिहाजा नमाज नहीं हुई। पूछा गया, मौलाना साहब मैं एक आखिरी सवाल है कि मैंने एक प्लॉट खरीदा, जो जिससे मैंने खरीदा 10 लाख रुपए मैंने प्लॉट खरीदा, मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए एडवांस, और देने के बाद मैंने उनसे वादा कर लिया कि 3 महीने के बाद इंशाल्लाह बकिया पैसे देंगे। अब ये बात बाजार में एकदम कॉमन है कि हमने खरीदा है, अगर हमको कोई अच्छा कस्टमर मिल गया 3 महीने के अंदर अंदर, तो मैं ये प्लॉट उसको बेच दूंगा, और डायरेक्ट वो जो बेचने वाला है, वो बेचने वाला इसके नाम पे क्या कर देगा, रजिस्ट्री कर देगा। अब जब मैंने बेचा तो 10 लाख वाले को मैंने 12 लाख में बेच दिया, तो मेरा ये 2 लाख लेना जायज है या ये मेरा ये सेल सही है? नहीं, दोनों बातें सही हैं। आपका 2 लाख में जो आपने बेचा, क्योंकि ये अब उर्फ आम में हो चुका है, उसे मालूम है बेचने वाले को कि जो खरीद रहा है हो सकता है ये एजेंट हो और ये इससे ज्यादा में बेच ले जाए, उससे नहीं बिक रहा है लेकिन ये बेच लेगा, लिहाजा उसने 2 लाख रुपए जो उसने कमाए वो जायज है और इस तरीके से करना भी सही है। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर खुदा न खास्ता कोई बात गलत निकल गई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।